physicsneet.com के इस लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं IIT-JEE एडवांस 2025 का प्रॉब्लम। ये ग्रेविटेशन चैप्टर से लिया हुआ है और इसमें बाइनरी स्टार्स की बात की गई है। और इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद आज हम फिर एक नई कहानी के साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बाइनरी स्टार्स की बात। क्लियर नाइट में बाहर यदि खड़े हों तारों को देखते हुए तो हमारी आंखों को कुछ तारे अकेले टिमटिमाते हुए दिखते हैं। लेकिन यहाँ एक राज है, इन तारों में बहुत बिल्कुल अकेले नहीं है। हमसे बहुत दूर दो तारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कॉस्मिक डांस में। ये आपस में ग्रेविटी से जुड़े होते हैं और एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहते हैं। जैसे मानो दो डांसर्स ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है ऑन ए स्टेज ऑफ डार्कनेस। और कुछ तारों को तो टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। तो ले आते हैं एक अच्छा सा टेलीस्कोप। इस बैंडी स्टार्स के प्रॉब्लम पे अब चलते हैं, जो एडवांस जेई 2025 का है। सो क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट given a consider a star of mass M2 revolving in a circular orbit around another star of mass M1, and this is the condition that M1 is very large than M2. So somewhere here यह है M1 very large और M2 यहाँ पर small, काफी small, और ये circular path में घूम रहा है like this way. The second part says the heavier star slowly acquires mass from the lighter one at a constant rate h kg per second. So इस M2 से इस तरह कुछ मास इसकी तरफ आ रहा है कांस्टेंट रेट पे, and during this there is no other loss of the mass. So the question says the separation between the centers of the star is r, then the relative the rate of change is given by 1 by r dr by dt, relative rate of change of this r। और ये हमारे ऑप्शंस दिए हुए, ऑल फोर ऑप्शंस, इसमें से कोई एक को फाइंड करना है। सो बेसिक लॉजिक, मैसिव मास m1 के अराउंड दूसरा स्टार m2 मूव कर रहा है और m2 से मास इज कमिंग टुवर्ड्स m1। सो इन दिस केस r चेंजेस सेपरेशन बिटवीन द टू स्टार्स और उसी के कनेक्टेड ये 1 by r dr by dt का वैल्यू निकालना है। So let's see how we can solve this. So here is the analysis and solution. So in the diagram I have shown, this is M1, massive mass, M2 is that smaller one, is moving around this one with this velocity v, and you can say this is with the omega angular velocity. So from Newton's second law, we can just directly write this equation. Net force is ma. Here this is centripetal acceleration and gm1 m2 by r square. So this gives the value of omega angular velocity of this smaller mass. Now, important concept that we have to consider, that during the transfer, the all the forces pass through this m1, and so torque of the forces about m1 is going to be zero. That's the central point. So torque is zero, so angular momentum will be constant. So let's find first of all angular momentum.
of the smaller mass, that is, m2 omega r squares. And once we put the value of omega, this one here, so we get this expression. Because we have to find the rate dr by dt. This we are interested in finding this dr by dt. That means says we'll have to differentiate with respect to time. So first of all, for easy calculation, take the log. So from this expression, this is log L to the base C. And here if you differentiate, if you just take this log, we get these different terms. And to get this dr by dt, the only option left is here to differentiate. So differentiating both sides with the time, what we get, this expression for this one constant, so it is 0. Now this value and corresponding to this. So the key area here we have to think, because M1 is massive, very large. Mass is coming from M2. M2 is still given that very small. So the rate of increase of the mass of M1 is very, very small because M2 is itself very small. So this taking this value approximately equal to 0. This is 0. L is constant, so this is also 0. So now solving, we get the value of 1 by r dr by dt, which we have to calculate. That is equal to minus 2h by m2, and this is the required answer. So I hope very easy. Angular momentum, conservation of angular momentum, and differentiating, we get the final value. Fine. So after this solution, we move to the segment of the story. और आज की स्टोरी में है, टॉपिक का नाम लिया है कंपेल्ड कॉन्फिडेंस. यस. सो कहानी, पॉन्ड, उसमें क्रोकोडाइल्स. पिछले वीडियो के जो भाई साहब थे वो 2 मिलियन और 6 मिलियन की कहानी जिनके बारे में सुनाई थी, उन्हीं के टाउन में अनाउंस हुआ एक नई तरह का कंपटीशन कि पॉन्ड में ताल पानी है और बहुत सारे क्रोकोडाइल्स होंगे, और उसको क्या करना है कि जो भी कोई भी इसको एक तरफ से इन करे, स्विम करके दूसरी तरफ चला जाए, तो 10 मिलियन मिलेगा. तो इस महोदय को बहुत ही ये हुआ कि चलो एक बार की बात है, अगर बच गए तो बहुत है. सो टाइम, प्लेस, डेट फिक्स था. ये पहुंच गए. ये पहुंचने वाले सबसे पहले थे कि यस, आज तो कोशिश करनी है. हाई कॉन्फिडेंस लेवल था. लेकिन जब इसको देखा वहां जा करके कि ये क्रोकोडाइल्स है, तो थोड़ा सा डर लगा और फिर वो रुक गए. देखने लगे कि कहीं कोई तो होगा जो इसको क्रॉस करेगा, या देखते हैं कि कोई नहीं है. तो फिर इन्होंने वेट करना स्टार्ट किया. फिर कुछ देर में और भी लोग आने लगे, और वो लोग भी यहीं पर इंतजार करने लगे. कुछ टाइम गुजरा, कोई भी क्रॉस नहीं कर रहा था. तो फिर लोगों का की बेचैनी बढ़ी. और लेकिन कुछ देर के बाद भीड़ में हलचल हुई, और लोगों ने देखा कि ये जो महोदय थे, जो सबसे पहले आए हुए थे, इन्होंने आ, जंप लगाया इस पॉन्ड में, और बचते बचते कैसे भी ये यहाँ पर आ गए, क्रॉस कर गया. लोगों की तालियां बजने लगी, और लगा कि अच्छा कोई तो है जो ऐसा काम कर सकता है. बहुत शाबाशी की बात. लोग इनको पकड़ के ले जाने लगे. स्टेज पर अवार्ड की बात आई. लेकिन ये बहुत गुस्से में, क्योंकि अवार्ड तो ले लूंगा, लेकिन आप लोग बताओ पहले कि सबसे किसने हमें धक्का दिया था इस पॉन्ड में जंप लगाने के लिए.
कंपेल्ड कॉन्फिडेंस। और कहानी यही समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी।